Okay, so the date is 7th of July 2025. The batch is MWF 432-6, and we are working on finalization points and keyword transaction with sample amount. We are working on this file right now, and which this file contains each and every transaction related to bookkeeping, accounting, review, finalization, and even I think fixed asset, payroll, deferred revenue, everything is covered into this. तो ये जो फाइल है इसके अंदर फाइनलाइजेशन के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, और उसके अंदर बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, रिव्यू हो गया, फाइनलाइजेशन हो गया, सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। इवन डिफर्ड रेवेन्यू, प्रीपेड अक्रूवल्स, जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू, प्रीपेड अक्रूवल्स, ये सारी चीजें आती। और टाइम ट्रैकिंग, माइलेज, ये पेरोल के रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो भी आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन, दैट मीन फिक्स एसेट का भी आ गया, एमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट का भी आ गया। ओके, पेरोल की एंट्री भी आ गई। सो दिस ट्रांजेक्शन, दिस इज कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। अब इसके अंदर हम हैं अभी 52 नंबर के पॉइंट पे, इनएक्टिव वेंडर क्लीन अप। सो हाउ टू फाइंड आउट इनएक्टिव वेंडर्स? निकिता, could you please show me how to do it? Inactive vendors and inactive customer, from where can I get it? Yeah, from we need to go into the QuickBook. Gear icon. Which icon? Yes, gear icon. You can enable to include an inactive. Scroll. Yeah. Include inactive. Okay, so from here you can get all inactive, Customer. either customer or vendor. You have all active, so do one thing. No, sir, ऊपर दो inactive है. Okay, make it active, right? यहाँ से अगर इसको एक्टिव करना, you can easily do it. Yes. अच्छा, क्लीनअप कैसे करना है? क्लीनअप कैसे? Clear, that means if we have to merge two accounts together, like see, clear means you have the same vendor but with different name. Merge करना है. Okay, so you can merge it. So Nikita, can you please merge two accounts? Uh, yeah, sir. Do you know how to do it? So yeah, I have done, but I forgot. Go to the account and from edit, Yeah. and from here you can get it. Merge contacts. So this is the process to merge two accounts. What we have to do, but and जब आप एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट के साथ मर्ज करते हो, तो जो एक अकाउंट जो होता है वो हो जाता है इनएक्टिव, दैट मीन्स डिलीटेड। तो लेट्स से ये गो हियर, प्रोसेस में क्या रहेगा? मैंने क्लिक किया मर्ज कॉन्टैक्ट, નથી આવતી મોબાઈલ ચેક કરો ને તમે. ના એટલે એવું છે પેલા બેચ અમારી ટીટીએસ કરી હા હા, તો પાછી મેસેજ જેવું કરી એમ કહ્યું કે અત્યારથી સ્ટાર્ટ થાય. MWF ને હા તમે
So merge transaction from this account into this account. और जे पण account so this transaction from all these account gonna transfer into this account, and this Amit Shah account gonna be deleted. Okay. So this is the process of merging accounts. Let's go to the next one. It's the same we can do for the vendor. Vendor. So here Yes. customer and vendor. The same process, no change. From here you can get inactive also. Okay, include inactive. Do you have any inactive? Yeah, this one. Okay. All supplies. So how to merge? The same process. Merge contact of this account to that account. So account approve. Which one was that? I think it's not done. It is PQR Limited, and we are going to merge with XYZ. So from here you can merge two accounts. Okay, this account got deleted. And what is next? Missing invoice number. How to find missing invoice number? Invoice number auto generated, so there is no missing invoice number. But yeah, for the bills you can say that कि बिल इनवॉइस नंबर जो होता है वो ऑटो जनरेटेड होता है, तो इनवॉइस नंबर कभी मिसिंग नहीं होगा। मिसिंग होगा तो बिल नंबर होगा, क्योंकि बिल जो होता है कस्टमर के पास, वेंडर के पास से आते हैं, एंड वी रिकॉर्ड देम इनटू द सिस्टम। सो बिल के लिए हम क्या करेंगे? परचेज रजिस्टर यू कैन रन इट फ्रॉम रिपोर्ट सेक्शन, और वहां से आपको पता चल सकता है कि किस किस डॉक्यूमेंट के अंदर मिसिंग है। ओके, सो गो टू द रिपोर्ट्स।
Purchase by vendor? No. कोई भी रिपोर्ट हो सकता है. वी व्हाट वी आर गोइंग टू टाइप योर परचेज एंड देन वी विल फाइंड आउट परचेज लिस्ट. लेट्स गो हियर. You can check one by one reports and accordingly you can identify. You will see the numbers. नंबर का एक कॉलम रहेगा. अगर वो ब्लैंक है so we can easily identify कि this one. हम्म. अब ये इसके अंदर सिर्फ जर्नल एंट्री है या क्या है? लेट्स चेक इट. ऑल दीज आर जर्नल एंट्री ओनली. अब ये जो है Yeah, so जिसका जर्नल एंट्री है उसका नंबर है. बिल का नंबर नहीं है. ओके सो No, for bill also it's there. I think purchase equipment. purchase equipment is there but see this one, record interest income. So how you have recorded? This is the bank deposit. Sorry, close this window. परचेज लिस्ट के अंदर ये सारी चीज आनी चाहिए बट इट्स नॉट शोइंग दैट. From here you can change the date segments. And from here you can export. Let's export into Excel and figure it out. What is it? Okay, you have not recorded transaction or bill number for this. Hmm. This is the bank deposit. Hmm. So you can check each and every transaction, and each and every transaction should have payment of 1,500 for the website. So from here you can filter it out the missing information or missing the reference number because each and every transaction should have a reference number. And how to fill up all this missing information? So when you go with this filter,
So these are the transactions which do not have referral reward of 50 is to Jane Smith. You have recorded this transaction as an expense. If you remember, there's a sale of $150 as a referral. Yes. So this is the payment of that. So at least the check number or ACH number, anything should be there. So you have to go for with each and every transaction, and we can figure it out whether this information is available into that or not. क्योंकि देखो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, there must be we say रेफरेंस नंबर. कोई भी डॉक्यूमेंट विदाउट रेफरेंस नहीं बनता है. Hmm. पेमेंट ऑफ 2500 फॉर प्रोफेशनल फीस. तो इसका भी कुछ ना कोई रेफरेंस नंबर होना चाहिए. तो ऑल दिस कॉल्ड क्लीन अप वर्क. एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, सो मेक श्योर कि जब भी आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो रेफरेंस नंबर या कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली ऐड कर दो. ओके, सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. गाइस, डू अंडरस्टैंड ना कि कैसे ही क्या करना है. पूरा परचेज का रिपोर्ट निकालना है, फिल्टर एक्सपोर्ट करना है, देन फिल्टर करके यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ट्रांजेक्शन के अंदर नंबर्स मेंशन नहीं है. यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे. अगर हम यहाँ पे जाकर सिर्फ सिलेक्ट नन और सिलेक्ट ओनली ब्लैंक, तो जो भी ब्लैंक है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, आपको वन बाय वन ट्रांजेक्शन चेक करना है और पूरा उनका जो भी रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है. So यहाँ पे अगर mention किया कि people को है, उनको नहीं. Nakhananda, if you enter this section into the search bar, or even you can go into the, just click this, and if you search in a memo section on the top, so you can find the transaction easily. Okay. Okay, you can just go to the particular transaction and mention the reference number. So whenever you record any transaction, never ever miss reference number. Okay, chalo, next one, what is that? Zero balance cleanup. Zero balance clean up zero balance accounts. Okay, so how to get it? In order to do this, you have to run trial balance. Hmm. Go to the trial reports and run the trial balance. हम करते हैं. अच्छा. Accrued income. Should I export to Excel? Yes, wait a minute. First of all, you have to check the dates also, na? The range. Okay, run the report and then export.
Unapplied payments. But the thing which you have done, is that correct one? Go to the chart of account. Not chart of account. That trial balance. Okay. So in this way also you can easily figure it out. Yeah. Done? And why the account is showing zero balance, you have to check it. Chalo, next one. Unapplied payments. Unapplied payment. What is unapplied payment? Show me any customer vendor's account. What is the effect of it? पहले, okay. What is unapplied payment? Where it is? Sir, we need to pay the bill. So over here it is applied. So इसमें बाकी है payment करना. But to one to write video. Those are bill are pending for payment. It's called. हमने बिल के अगेंस्ट ये में pay. पेमेंट नहीं लिया है हाँ. Okay, so these are paid. हाँ. यहाँ पे आपको बैलेंस मिलता है ओवरड्यू बैलेंस, ओपन बैलेंस. Open balance. ओपन बैलेंस कौन सा है? इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनका पूरा स्टेटमेंट जो क्रिएट होगा उस स्टेटमेंट यू कैन क्रिएट इट. ओपन बैलेंस है, इसमें कौन से ट्रांजेक्शन बाकी है, ये जो अप्लाइड हुए हैं. क्लिक हियर ऑन अ फिल्टर. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि टोटल कितना था, उसके बाद उसका बैलेंस कितना बचा हुआ है और उनका भी स्टेटस क्या है. टोटल वो 1000 बैलेंस इज ओवरड्यू, दिस इज ओवरड्यू. इसके अंदर 1000 अप्लाई हुआ है ये. ओके, नाउ 6 0 है उसका आउटस्टैंडिंग. ये भी बिल है और बिल आउटस्टैंडिंग पूरा खड़ा है. वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि कोई भी पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग में खड़ा नहीं होना चाहिए. बिल पेमेंट 4000 इसके सामने किया है और 3000 का एक्सपेंस कौन सा रिकॉर्ड किया हुआ है. Salary. Whenever you make payment for the salary, what you have to mention, the memo section is like
फॉर द पीरियड, मतलब जो भी पीरियड है वो आपको मेंशन करना है। तो जस्ट मेक श्योर यू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल, लाइक से अगर हम वी आर पेइंग फॉर this period, so you can mention this one also. Okay, so in this proper way you have to mention everything. Cinema, we We can mention also, like for the period 6 months, always mention period rather than month. क्योंकि होगा क्या कि समटाइम्स ऐसा होगा कि कुछ दिन का प्रोविजन भी आपको करने का आएगा, कहीं भी आपने लिख लिया कि फॉर द मंथ ऑफ जून, बाद में पता चला कि पेरोल का जो रन तो हुआ था वो 6/28 तक ही हुआ था, तो 2 दिन का प्रोविजन मतलब अक्रूवल्स एवरीथिंग यू नीड टू डू इट। So just make sure you mention the full number. कोई भी पेमेंट है वो ओपन नहीं होना चाहिए। बिल पेमेंट अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड, बिल पेड, this is overdue, whatever that is fine. Now okay, $150, what is this? This is the reversal of check bounce, if I'm not wrong. This is the entry of check bounce check of 150 to XYZ, accounts payable credit, HDFC Bank debit. So you need to apply this. Where is the $300 payment? It is not mentioned here because this transaction is against for the $300 payment. Bill 200, 130, 70 applied. तो पंखा बंद कर देगा तो एसी दूंगा तो बता दूंगा जैसे पंखा पंखा कर दिया, एसी बंद कर, एसी बंद कर इसको, तो गर्मी ना लग गई पर। Okay, so the next one, let's go with the next. Open purchase order review. Open project, open PO review means open purchase order. From where you can get it? That is already available in report section. Then open sales order. Estimate. We can use estimate. Yeah, estimate. और सा कहाँ आया? Estimate, that is for customer. Yeah, but Yeah. open हाँ. SO review भी है Okay. हाँ, got it. Then sales tax liability report. Where you can find it? Into the balance sheet. Open that balance sheet. So this is moreover about the reports and everything. And when you gain all these skills, when you go step by step with everything, only after that you can gain these skills. कि लाइब्रेरी कहाँ पे आएगी, लाइब्रेरी क्रिएट कैसे होती है, एक्चुअल। Texas State Comptroller, yeah. बस सर अगर मुझे पे करना हो टैक्सेस वाला तो चेक मॉड्यूल से पे करेंगे हम लोग सॉरी, या जनरल? अगर ये टेक्सास स्टेट का जो पेबल है सेल्स टैक्स, तो वो मुझे पे करना हो तो कैसे पे जस्ट करेंगे? अ चेक। ओके। और सर मेरी सिस्टम में माइनस में दिखा रहा है, ऐसा रीजन क्यों? ओके, सो यू हैव मेड ओवर पेमेंट, लाइब्रेरी से ज्यादा आपने पेमेंट कर दिया है। ओके ओके। लाइब्रेरी से ज्यादा अगर आप पेमेंट कर देते हो सो दैट विल शो इन माइनस। ओके
और सर ये सेल्स टैक्स में जाके क्रिएट करना है या फिर ये अपने आप क्रिएट होता है जब आप इनवॉइस रिकॉर्ड करते हो, सेल्स टैक्स रिमूवल करते हो, तो ये अकाउंट जो है वो अपने आप क्रिएट होता है और यहाँ पर आप जाते हो सेल्स टैक्स में। बड़ा गर्मी लग रहा है। वन चेंज करो पड़ता आई थिंक. So whenever you create setup now, this name created automatically. Existing. ટેક્સ કરશે આપણે કોમ્પ્યુટર એડ્રેસ છે એટલે આપણે સેલ્સ કરીએ તો આપણે લોકેશન બી ટેક્સ કરવાનું. Yeah, the sales tax count on a based of buyer's location. બાયર કે સેલર વી આર ધ કંપની We are selling now વી આર સેલિંગ ટુ as per customer's location. Hmm. Okay. As per the customer location, sales tax counting is done. ઓકે And if you do not have appropriate address for the customers, so you are liable to pay as per your address. Bhargav, are you following this? Huh? એટલે મોબાઈલમાં ચેક કરો એવું છે. ના હું વેબસાઇટ જોયું. Which one? QuickBooks? ના તમારી જ. Okay. So as of now, you are in a class, na? So that's better if you go to the class. ના અત્યાર સુધી જોઈ રહ્યો છું કન્ફ્યુઝન હતું આ ઓફલાઈન અને રેકોર્ડેડ લેક્ચર્સ. Okay, I'll explain what is the difference between that. so if customer address is not available, then we can record as per vendor's address. The system is going to take by default itself. Okay. If we do not have customer's proper address, the system is going to calculate sales tax as per our address. मतलब अगर कस्टमर का एड्रेस हमारे पास नहीं है और अगर हम सेल कर रहे हैं बट हमारे पास उनका प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो ये जो सिस्टम है वो काउंट करेगी सेल्स टैक्स ऑन अ बेस्ड ऑफ आवर एड्रेस. मतलब हमारे एड्रेस के हिसाब से सेल्स टैक्स काउंट कर लेगी. ओके. Okay. व्हाट इज द नेक्स्ट? Cleared versus uncleared check. What is cleared check and what is uncleared check? क्लियरेंस पेमेंट डेबिट या क्रेडिट हो चुका है अकाउंट की से और सामने वाले को चला गया है. एंड अनक्लियर मींस हमने डाल दिया चेक बैंक के अंदर बट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ कि पेमेंट हमारे खाते से डेबिट हुआ ना सामने वाले को क्रेडिट दे. Okay, so different checks. यहाँ पे लिखा हुआ चेक. चेक मीन्स इट्स अ फॉर द पेमेंट टू पेमेंट मेड बाय द कस्टमर, तो उसे हम डिपॉजिट काउंट करेंगे. और जो अगर हम कस्टमर क्लाइंट को पे करते हैं मतलब वी आर पेइंग टू अवर सप्लायर्स, तो इन दैट वे वी आर गोइंग टू काउंट एज अ चेक. और अनक्लियर्ड चेक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? When you do reconciliation, at that time you can found uncleared checks. रिकंसिलिएशन हमने किया हुआ है पहले. No, sir. नहीं सर बैंक रिकंसिलिएशन बाकी है. ओके, बैंक रिकंसिलिएशन बाकी है ना? बैंक रिकंसिलिएशन Yes. बाकी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाँ Yes, yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट इट.
ओपन QuickBooks फाइल। What should I open, sir? रिकंसिलिएशन कहाँ से होगा? सो फ्रॉम हियर ट्रांजेक्शंस, Hello. હા પણ વરસાદ બહુ પડે છે મોટો. એટલે હવે મમ્મી પહોંચી કે નહીં પૂછી ગયું પણ વરસાદમાં નીકળી લાગે છે. વરસાદમાં નીકળી. સારું ચલો. now see reconciliation it is just to make sure whatever we have recorded, that is all the transactions are appropriate, and this is the way reconcile like a pro. Get your books and your bank statement to it. Open the bank statement, match your books to the statement, and success, your account is reconciled. So this is reconciliation window. From here you can see the history of reconciled transaction, and from here you can see the summary. So now from here you can select the bank, and guys you can do reconciliation for each and every balance sheet items. Okay, so why you have to reconcile each and every balance sheet item? हर एक बैलेंस शीट आइटम को रिकंसिलिएशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो फर्स्ट आती है बैंक, उसका अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद एसेट्स है। अब बैंक के अंदर जो भी चेक इनकमिंग हुए हैं या आउटगोइंग गए हुए हैं वो प्रॉपरली हुए हैं या नहीं हुए हैं, एक तो वो पता चल जाता है रिकंसिलिएशन करते हैं तो। देन अकाउंट रिसीवेबल का अगर जब हम रिकंसिलिएशन करते हैं तो ये पता चल जाता है कि इनवॉइस के सामने पेमेंट आया हुआ है या ओवर पेमेंट आया हुआ है, तो हम उसे लायबिलिटी दिखा देंगे। और एट द सेम टाइम हमें पता चलेगा कि जितने इनवॉइस से उतना पेमेंट आया है या नहीं आया हुआ है, और अगर बाकी है पेमेंट कितने इनवॉइस का बाकी है वो आप क्लियरली फिगर आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स का अकाउंट भी रिकंसिल हम कर सकते हैं। क्यों रिकंसिलेशन करना है? क्योंकि उसका जो डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया हुआ है, सिस्टम में जो काउंट किया हुआ है, और वो हम मैन्युअल भी काउंट करके एक बार चेक कर सकते हैं। और वो करने के बाद आप उसे सेव कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका ये भी रिकंसाइल हो जाएगा प्रॉपर्टी अकाउंट। और प्रॉपर्टी अकाउंट प्रॉपर्टी अकाउंट रिकंसाइल करना, मतलब कोई भी बैलेंस शीट अकाउंट है रिकंसाइल करना कंपलसरी है। क्योंकि अगर जब आप रिकंसाइल करते हो दैट मीन्स कि आपने क्रेडिट डेबिट पूरा चेक कर लिया हुआ है। अब अगर हम बात करें इन प्रैक्टिकल वे, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट जैसे कि लोन अकाउंट है, आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, उनके वहां पे जो स्टेट बैलेंस शो हो रहा है वही बैलेंस हमारे यहाँ पे भी शो होना चाहिए। और अगर डिफरेंस आ रहा है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज दैट डिफरेंस? वी हैव टू फिगर इट आउट, हमें वो ढूंढना है और उससे जो भी एडजस्टमेंट है उसकी वो पोस्टिंग करनी है। ओके, तो एक ये चीज रहेगी। और लाइबिलिटी है, तो सेल टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो भी प्रॉपरली पोस्ट, अगर सपोज हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की 6/30 को कि इतना अमाउंट हमें पे करना है, और 3rd of July को हमने वो पेमेंट किया है, तो हम क्या करेंगे? जितना डेबिट था, मतलब जितनी लाइबिलिटी हमने क्रेडिट की थी उतनी अमाउंट हमने डेबिट कर दी है। तो वो जो चेक है हम सीधा 6/30 के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो बैलेंस हो जाएगा। जितना लाइबिलिटी हमने क्रिएट किया उतना पेमेंट कर दिया है, चेक हम 6/30 के डेट में पोस्ट कर देंगे और जीरो करके रिकंसाइल कर देंगे। उसके बाद कभी भी अगर कोई ट्रांजेक्शन डिलीट होता है तो रिकंसिलिएशन डिस्क्रिपेंसी के अंदर वो ट्रांजेक्शन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्यों आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है। तो रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। बट बैलेंस शीट के लिए सारे अकाउंट रिकंसाइल क्यों करना, उसका ये मेन कंसर्न कि आपने एक बार बुक फाइनलाइज कर दी, उसके बाद अगर आप कोई भी चीज यहाँ वहाँ करते हो या आपके अलावा और कोई भी, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि लेजर स्क्रूटनी के अंदर कौन सी चीज ये हुई है
और इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल सबमिट कर दे उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर जरूरत है तो और रिक्वायर्ड है तो भी आप कर सकते हो, पर उसका भी क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। सो एक्सिस बैंक का हम बिगिनिंग बैलेंस जीरो आएगा, क्योंकि हमने अभी तक एक भी रिकंसिलिएशन इसका किया नहीं है। हम पहला रिकंसिलिएशन करेंगे 6:30 को। उसका बैलेंस अभी टेम्पररी हम यहाँ पे जीरो मेंशन कर रहे हैं। वी कैन चेंज इट लेटर ऑन ऑल्सो। अब कोई भी चार्जेस वगैरह जो है आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हो, एंटर द सर्विस चार्ज और इंटरेस्ट अर्न इफ नेसेसरी। यहाँ से रेकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चार्जेस है तो आप यहाँ से एक्सपेंस में जाके या चेक में जाके या तो एक्सपेंस जाके रिकॉर्ड कर दीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला हुआ है तो बैंक डिपॉजिट में आके आप यहाँ से रिकॉर्ड कर दीजिए। गाइस दिस, ये जो है ये मॉड्यूल्स है। જે મોડેલ ની વાત કરતો હતો ને એ આ બધા મોડેલ છે, ઓકે। ઇનવોઇસ ના છે, પેમેન્ટ રિસીવ ના છે, બિલ્સ છે, बैंक ट्रांसफर છે। नाउ वेयर वी आर, हाँ डिपॉजिट अगर है तो यहाँ सब ले लीजिए। यहाँ से ट्रांजेक्शन पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप स्टार्ट रिकंसाइल में क्लिक करते हो तो आपके पास पर्टिकुलर 6:30 तक के सारे डेबिट्स एंड सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन सामने आ जाएंगे। अब रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं देखिए। स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग बैलेंस अभी जीरो है, क्लियर बैलेंस भी जीरो है, बिगिनिंग बैलेंस भी जीरो है, क्योंकि हमने बिगिनिंग बैलेंस लिया ही नहीं है। तो हमने स्टेटमेंट निकाल के टिक कर देंगे ना वहाँ पे, राइट उसे। इसमें आपको यहाँ पे पेमेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डिपॉजिट मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको सारी ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, वन बाय वन ट्रांजेक्शन खाली ऐसे टिक करते जाना है एज पर योर बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट ये सारे चेक्स है तो आपको इस तरह से टिक टिक करते जाना है। रिकंसिलिएशन मंथली मंथ होगा, पर मंथ करना होगा ये। पर मंथ, और व्हाट यू कैन डू एज पर द पीरियडिकल बेसिस एज वेल। क्रेडिट कार्ड जो होता है मंथली बेसिस पे, मतलब स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे होता है, बट उनका क्लोजिंग 6:30 का नहीं रहता, कोई भी डेट रहती है उनकी। ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू रिकंसाइल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ऐसा है कि 6:30 को क्लोज करना है। तो फ्रॉम दिस यू कैन टिक वन बाय वन, यहाँ पे टिक कर लीजिए, या सिलेक्ट ऑल। अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो ऐसा कर रहा है कि आपने 24 पेमेंट्स किए हुए हैं, और उनकी अमाउंट होती है 88,000, जबकि आपके पास पेमेंट जो आया हुआ है 43,000 का ही आया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 46,000 का, 45,000, 46,000 का लॉस चल रहा है। ये है मतलब डिफरेंस ये है। तो हम एक काम करेंगे, हमारा जो अकाउंट है एक्सिस बैंक का, उसके अंदर हम मतलब जस्ट वी आर इमेजिन कि अ, हम ये मान के चलते हैं कि ओनर की 50,000 हमारे पास पड़े हुए हैं। उसकी जो डेट है वो हम करेंगे 6/1। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक टू इक्विटी। राइट, अब हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस। एक एंट्री आपको दिख रही है, ओपन बैलेंस इक्विटी, राइट, डिपॉजिट 6/1। अब आपका बैलेंस ये जो है अभी भी 4,206 माइनस में है।
माइनस में चार्ज 45। जब 50 का मिक्स 60 तो सेफ थी। एंडिंग बैलेंस वी हैव टू सेट इट एज 4200.25। बैंक का कुछ तो बैलेंस होगा ना। ओके। So we have added more 4,000 rupees in the bank. नो Or वी हैव एडेड 50,000। okay. देखो आप यहाँ पे अगर मैं क्लिक किया तो यहाँ स्टेटस क्या दिखा रहा है, मेरे पास 43,000 ड्यूरिंग द मंथ आए हुए हैं और मैंने खर्च किया हुआ है 89,000, 88,000, समझो। ओके। तो मेरे पास बैलेंस तो कुछ था नहीं, तो मैंने कहा कि भाई मैं एज एन इक्विटी 50,000 पहले लाया था, मतलब 50 प्लस 93, 50 प्लस 43 इज इक्वल टू 93। ओके, 93 माइनस 89, 4,000 हुआ ना, तो ये रहा बैलेंस अपना। Hmm. ये बैलेंस 4,206 जो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस है, मतलब बैंक में अपना इतना पैसा पड़ा हुआ है अभी। ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ तो टाइप इसलिए किया ना क्योंकि हमारे पास, हमें पता नहीं है ना क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, ये तो हमने मैन्युअली डाला हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स वाई। जब आपके पास स्टेटमेंट आता है तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट की अमाउंट ही डालनी है। ओके। ठीक है। हाँ, एंडिंग यानी 632 एंडिंग वो 632 का है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हो फिनिश नाउ। तो जैसे आप फिनिश करोगे तो आपको इसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा, इसकी हिस्ट्री भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो एक डाउट था मुझे। बोलो। हम जब वर्किंग करेंगे यूएस अकाउंटिंग में, हम्म। तब क्लाइंट का तो बैंक अकाउंट अपने पास एड ही रहेगा ना? क्लाइंट का बैंक अकाउंट ऐड रहेगा, दैट इज फाइन कि आपको ट्रांजेक्शन डायरेक्ट क्विकबुक्स करने मिल जाएंगे, बट आपको पीडीएफ फाइल भी या एक्सेल फाइल भी चाहिए रहेगी एज अ स्टेटमेंट, क्योंकि एंडिंग बैलेंस तो ओके। पता होना चाहिए ना आपको। हम्म। और सर उसमें हम इधर जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस वो सब क्रिएट करते उनका क्रिएट करना पड़ेगा या फिर वो रेडी होगा किसका? क्लाइंट का? नहीं, क्लाइंट का रेडी भी हो सकता है, डिपेंड्स। इफ यू आर गेटिंग ए न्यू कंपनी तो ये सारी चीज आपको क्रिएट करनी होगी, इसलिए तो हम ट्रेनिंग देते हैं ना उसकी भी, हम्म। कि अगर नया है क्लाइंट हम तो वही कंसिडर करेंगे कि क्लाइंट नया है, हम क्यों कंसिडर करेंगे एग्जिस्टिंग क्लाइंट मिलेगा, हम तो वही कंसिडर करेंगे क्लाइंट ही नया है, पूरी क्विकबुक्स की फाइल ही नहीं है। और इसी वजह से तो हमने आपको वीडियो वगैरह दिए थे ना कि चेंजेस करो आप वीडियो के बेस पे, हाँ हाँ। राइट, इसी वजह से हम देते हैं वो वीडियो, कि वीडियो के बेस पे क्विकबुक में चेंजेस करो और उसके बाद ट्रांजेक्शन करो, तो आपको आपको कुछ नया नहीं लगेगा। ओके। बीजू कोई क्वेश्चन एनी मोर? बस इस पैसे इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हाँ, या फ्रॉम हियर यू कैन सी द रिपोर्ट्स। रिकंसिलिएशन में करना क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस वॉट एवर यू कलेक्टेड। अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है हाँ, वो सारा इनको ओपनिंग बैलेंस राइट। रिकंसिलिएशन मतलब यही होता है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस इनकमिंग माइनस एक्स आउटगोइंग, जो भी बचा वो आपका बैंक बैलेंस। बैंक के स्टोर में हाँ, दैट इज सिंपल। और यहाँ पे आपके पास अगर देखो यहाँ पे क्या है, अनक्लियर ट्रांजेक्शन आफ्टर 630, $6,000। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है जो अनक्लियर है? जो हमने इसमें ये 7 12 के ना जो ये 7 नहीं होता दिस टू ट्रांजेक्शन नहीं, आफ्टर 630 है, अनक्लियर चेक्स एंड पेमेंट आफ्टर 630। या तो ये तो है 7 2 का, ओके। तो इसमें के रिकंसाइलिंग है हाँ, तो दैट्स नॉट वी आर गोइंग टू टेक केयर अबाउट इट। अब जब आप दोबारा रिकंसिलिएशन करने जाओगे तो उसमें क्या होगा आपको बता।
यहाँ पे आपको समझ मिल जाएगी। स्टेटमेंट एंडिंग डेट कब कैंसिल किया है, कौन सी डेट को किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे, देखो 4,4,204, 4206.25 ओपनिंग बैलेंस इज देयर, right? Before that it was zero. Yeah. So this is the opening balance of last month closing balance. Is that clear till now? Let's do it for another bank. सर फ्रैंकलिन में नहीं होगा उतना, HDFC का कर लो। Let's what we are going to add again zero balance. We will change it once we have actual balance amount. Okay. Start reconciliation. और जितने भी कैंडिडेट नए हैं, डोंट वरी, सब आ जाएगा धीमे धीमे, ज्यादा टेंशन मत लेना कि क्या है। इट इज ऑल अबाउट 1.5-2 महीने के बाद के ट्रांजेक्शन है विच यू आर गोइंग थ्रू। अब यहाँ पे 25,500 मुझे मैंने पेमेंट किया हुआ है और मेरे पास आया हुआ है 81,000। तो बट अब मेरे पास बैलेंस पड़ा होगा, तो 56,045। तो व्हाई इट इज कमिंग इन माइनस? माइनस इसलिए आ रहा है ना क्योंकि आपने एंडिंग बैलेंस नहीं डाला हुआ है। आपको एंडिंग बैलेंस डालना तो पड़ेगा ना, तो भाई मेरे लास्ट में मंथ मंथ एंड में मेरे पास इतना पैसा रहा। आपको बैलेंस जीरो जीरो इन द एंड होगा। हाँ, ये जीरो होना चाहिए ना। आप देखो, आपके पास जीरो पैसा था, आपके पॉकेट में जीरो पैसा था, आपके पास 81,000 का पेमेंट आया हुआ है और आपने 25,500 का पेमेंट किया है, 25,500 का। तो ये तो बैलेंस आपका बचा ना, हम्म। बैलेंस बचेगा ना। यस सर। हाँ, सही सोच से हमने ये क्लियर बैलेंस लिखा, और क्लियर बैलेंस लिखेंगे मतलब ये टोटल हो जाएगा। डन। यस। लेट्स गो द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द टास्क? सो रिकंसिलिएशन पता चल गया आप सबको कैसे होता है। और हैविंग डाउट्स, यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी हर एक अकाउंट की। जब भी कोई स्टेटमेंट वगैरह देना हो सो वी हैव टू गो रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे समरी है। स्टेटमेंट बिगिनिंग बैलेंस वाज जीरो, चेक एंड पेमेंट 25,000, 81,000 की रिसिप्ट है। तो मेरा बुक्स का बैलेंस है 5605 और मेरे रजिस्टर का बैलेंस भी है 56, मतलब ये है बैंक का बैलेंस, ये है मेरे बुक्स का बैलेंस, तो दोनों मैच हो गए। ओके। अनक्लियर ट्रांजेक्शन आफ्टर 630 जीरो है 18,000 के, जो हम यहाँ पे देख पाएंगे कहाँ पे है चेक। ये रहा 7 सेल्स रिसिप्ट, एक रिकॉर्ड की हुई है, बट दिस इज आफ्टर। हाँ, and then the deposit and deposit and other credit clear। और ये रजिस्टर बैलेंस है तो 77, ये आज का बैलेंस है अपने पास। ओके। रिकंसिलेशन इतना टफ नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। बैंक में मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। विच वन? रिकंसिलिएशन। हाउ इज दैट पॉसिबल? जितना पैसा दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट रिकंसिलेशन इज नॉट मैच। रिकंसिलेशन इज व्हाट, कि जो आपके पास बैलेंस था प्लस आपके पास जो इनकम हुई माइनस जो आपने एक्सपेंस किया, और आपके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है वही बैंक बैलेंस बैंक का होना चाहिए। अगर रिकंसिलेशन नहीं हुआ है तो मतलब नहीं हो रहा है, सो पॉसिबिलिटीज आर कि बैंक में कुछ चीजें डेबिट हुई है कि जो आपने यहाँ पे डेबिट नहीं की हुई है, या तो फिर बैंक ने इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है वो आपने क्रेडिट नहीं किया हुआ है। तो ये सिनेरियो हो गए। दूसरा चीज है कि आपने चेक इश्यू किया हुआ है बट बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। ओके। और दूसरा होता है कि आपने डिपॉजिट किया हुआ है बट बैंक में वो भी क्लियर नहीं हुआ है। ये चार ऑप्शंस हो सकते हैं और कोई ऑप्शन बाहर का नहीं आएगा।
Right. Thank you, sir. Okay, so that's impossible कि कभी रिकंसिल ना हो. That is possible. मतलब possible मतलब होता ही है, तो जीरो हो ही जाएगा. What is next? Let's go quick. So that was a clear and clear check review. Okay, वो तो हमने कहा accrued versus cash basis report review. So guys, how many of you are aware about what is cash basis and what is accrual basis? सर आपको जो क्रेडिट पे सेल या परचेज होता है कैश यानी सेल्स सिस्टम क्या होती है सो There are two types of accounting: the cash basis and accrual basis. If you have the entire business on a cash basis, so you can go with the cash basis accounting. Cash basis, that means there is no vendor, no creditors. जो भी मिला हुआ है, that is your income. जो भी गया है, that is your expense. That's it. And accrual basis, or that you make a sell in on credit, purchase on credit, and provision you have to make it, that with accruals, either accrued expense or for accrued income also, deferred revenue also, and prepaid also. Why this is required? Accrual basis accounting. Using this method, you can give appropriate accounting effect to the respective month. One by one, if we go with the example, so the first one is deferred revenue. You have you have sold the AMC for 3 months. Not AMC, it's a service contract for 3 months. Now you have raised in the month of 6/13, means June. So in a June, you have raised that invoice and you have received that payment. But actually, you are going to provide them service by July, August, and September. So you have to split out this income in 3 months. ये आपने जो भी इनकम की हुई है 6/30 में, वो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ के लिए है, ना कि वो करंट मंथ की है. तो आपको क्या करना है, वो इनकम जो है वो 3 मंथ के अंदर स्प्लिट आउट करनी है. अब वो कैसे आप करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप 3 एंट्री रिकॉर्ड करोगे. तो उसके लिए आपको पहली एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है. चलो हम कैसे करेंगे, हमने कैश में सेल किया हुआ है, तो कैश में सेल करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा. जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट. तो क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट हम सेल नहीं करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू, मतलब हमारी लायबिलिटी. ओके, मतलब हम क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी. अब उसके बाद जून मंथ के अंदर हमने उन्हें एज लायबिलिटी शो करा दिया. अब जुलाई में हमें उनको इनकम शो करानी है. तो चलो हमने सेल्स जैसे कि 30,000 का था इनवॉइस जून मंथ में. अब वो 3 मंथ में डिवाइड करना है, मतलब 10,000 पर हेड, मतलब पर मंथ. तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे जुलाई मंथ में. तो अब डेबिट क्या करेंगे? कस्टमर तो डेबिट नहीं कर सकते, कस्टमर को ऑलरेडी हमने डेबिट किया हुआ है. तो हम क्या डेबिट करेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू. ओके, क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू जो है वो अपनी लायबिलिटी है, और जब भी लायबिलिटी हम डेबिट करते हैं तो उतनी अमाउंट से वो कम हो जाएगी. तो जुलाई मंथ के अंदर हम क्या करेंगे, एक एंट्री होगी जर्नल एंट्री, डिफर्ड रेवेन्यू डेबिट एंड सेल्स अकाउंट. सेल्स तो द सेम वे हम अगस्त में भी करेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट. एंड अगस्त में भी यही करेंगे. अगस्त में जैसे आप एंट्री पास करोगे तो आपका डिफर्ड रेवेन्यू का जो बैलेंस है वो हो जाएगा जीरो आउट. ओके, सो दैट इज कॉल्ड डिफर्ड accrual basis रेवेन्यू. अब कैश बेसिस में क्या होता है, जो भी हुआ वही मंथ के अंदर हम कर देंगे. नाउ द रीजन व्हाई वी हैव स्प्लिट, हमने 3 मंथ के अंदर क्यों स्प्लिट किया?
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3 महीने का था। उसका रीजन ये है कि 3 मंथ तक हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए जो मैन पावर यूज होगा, उनको सैलरी वगैरह जो हम देंगे, वो तो एक्चुअल पीरियड की होगी, मतलब एक्चुअल मंथ में देंगे। अगर जुलाई में सर्विस करने जा रहे हैं तो उनका जुलाई का सैलरी भी रहेगा, तो जुलाई का सैलरी जुलाई में ही बुक करेंगे। तो अगर हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं जुलाई में, तो बट ऑब्वियस उसकी इनकम भी जुलाई में ही बुक होनी चाहिए। गाइस, एनी क्वेरी फॉर दिस? नो? યસ આઈ હેવ સર. यस, बोलो बोलो। સર એમાં એવું હતું કે સપોઝ એડવાન્સ અકાઉન્ટિંગ ફ્યુચર ના હોય બરોબર, हम्म। સો આપણે પછી એને ઇનવોઇસ 3 મંથ પછી આપણે એને ક્રિએટ કરીને આપશું કે પછી 3 મહિનાના અલગ અલગ ક્રિએટ કરીને આપશું? ઇનવોઇસ ક્રિએટ કરીને આપી દેવાનું ને। ઇનવોઇસ એડવાન્સ અકાઉન્ટિંગ અંદર હોય છે ऑप्शन કે કોકમાં પણ જો ના હોય તો શું કરવાનું, નોર્મલ ઇનવોઇસ। તો हमें क्या करना है, मैं तू हिंदी में बात करने गुजराती चालू करे છે। સોરી સોરી. अगर हमें इनवॉइस एडवांस अकाउंटिंग का फीचर्स नहीं है, तो हमें नॉर्मल इनवॉइस रेज करना है। उससे क्या होगा, एआर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। और दूसरी एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री, सेल्स डेबिट एंड डिफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट बाय द सेम डे। 6:30 को अगर हम इनवॉइस रेज कर रहे हैं तो इनवॉइस रेज किया नॉर्मली, और वही अमाउंट को हमने रिवर्स आउट कर दिया और डिफर्ड रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया। और जैसे अभी हमने ट्रांजेक्शन किया जुलाई अगस्त सितंबर का आया, वैसे ही सेम हम ट्रांजेक्शन करेंगे। क्लियर? ઓકે સર, ક્લિયર. ओके, सो नेक्स्ट वन इज Month end checklist. मंथ एंड चेकलिस्ट। मंथ एंड चेकलिस्ट का वो पूरा डॉक्यूमेंट ही दे दिया है गूगल ड्राइव में मैंने, कि जिसके अंदर क्या क्या चेंज चेक करना होता है। ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, अप्रूव डिफर्ड, ये सारी चीजें हुई या नहीं हुई है, पेरोल का फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, पेरोल का प्रोविजन या जो भी प्रोविजन करना है वो हुआ है या नहीं हुआ, उसका पूरा डॉक्यूमेंट ही दे दिया हुआ है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। द नेक्स्ट वन, अक्रूवल एडजस्टमेंट। वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आगे लगे आप सबको। गाइस, एनी डाउट इन दैट अक्रूवल्स में? अक्षय, नो सर। निकिता, कोई डाउट? नो सर। पक्का ना? यस सर, यस। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि पक्का आपको पता है अक्रूवल्स में। क्लियर है ना? यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट। डेफर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। वो तो हमने कर दिया। हाँ। प्रीपेड एक्सप्रेस एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप 12 मंथ का पे करते हो तो आपको एक्सपेंस डेबिट नहीं करना है, बट आपको डेबिट करना है प्रीपेड इंश्योरेंस। यस। एंड क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट या तो वेंडर अकाउंट। और जैसे फिर क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ, जैसे कि 6:30 को हमने इंश्योरेंस पे किया है 12 मंथ का, तो जुलाई 31 जुलाई को हम क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। बट हम्म, वो कितने मंथ के लिए, अमाउंट क्या होगी, जो भी अमाउंट हमने पे किया हुआ है डिवाइड बाय 12। तो पर मंथ की जो भी अमाउंट आएगी वो होगी प्रीपेड यस। इंश्योरेंस, राइट? क्लियर गाइस? उसके बाद है ट्रायल बैलेंस फाइनल रिव्यू। वो तो अभी हमने किया, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ट्रायल बैलेंस फाइनल रिव्यू, जीरो वैल्यू। और जो भी नेगेटिव, जो भी नेगेटिव वगैरह था वो भी हमने फिगर आउट किया था ना, करेक्ट? एंड देन P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। हमने ट्रायल बैलेंस लास्ट टाइम किया है या नहीं किया है, कोई प्रॉपर आंसर देगा या? नहीं सर, नहीं किया है। पक्का? पक्का। ओके,
कोई नहीं, तो चलो नेक्स्ट सेशन में हम ट्रायल बैलेंस रिव्यू करेंगे। ओके। ओके सर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट। हाँ, वो भी उसके अंदर कर देंगे हम। ओके ओके। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे, इन्वेंट्री कंजप्शन कैसे काउंट करते हैं, उसके बेस पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन आएगी। क्योंकि इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेस माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू योर क्लोजिंग बैलेंस। ओके। या तो फिर दूसरी चीज हो सकती है कि इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू योर कंजप्शन। ओके। Okay, guys. So by the next session, we are going to work on trial balance review, then P&L balance sheet. ये सारी चीजें एक ही लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगी। ओके श्योर। पर सर वो लास्ट 2 लेक्चर प्लीज अपलोड करवा दें यूट्यूब पे वो तो हो हम जाएगा, लोग। अभी अपलोड, अभी ये भी अपलोड हो जाएगा और वो भी अपलोड हो जाएगा। अभी ऊपर जाकर मैं ओके publish कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर डन। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू हैव अ ग्रेट डे बाय बाय। ओके, या बाय बाय एवरीवन।